हेलो गाइस, आई एम हितेश त्रिपाठी और इस वीडियो में हम एडिटोरियल वीडियो देखने वाले हैं। प्रॉब्लम सी फ्रॉम टुडेज रेटेड कॉन्टेस्ट एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 127 रेटेड फॉर डिव 2. ओके, प्रॉब्लम सी डोल सी वीटा. So if we see tasks of the problem, it is greedy and math. Okay, so basically brute force है, but you have to think over it. Okay, so let's just discuss the question first. Now, turbulent times are coming, so you decided to buy sugar in advance. There are n shops around that sell sugar. The ith shop sells pack of sugar for AI coins. Okay, so there are n shops, and ith one is selling the pack of sugar for AI coins, but only one pack to one customer each day. So one customer can buy only one pack from each shop. So in order to buy several packs, you need to visit several shops. Okay, so if I have to buy several packs in the same day, I have to visit several shops. Another problem is that prices are increasing each day. During the first day, the cost is AI, second day AI plus 1, third day AI plus 2. So each day your price is increasing by 1. On the contrary, your everyday budget is only X coins. Okay, so I hope सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी. In other words, each day you go and buy as many packs as possible with total cost not exceeding X. Note that if you don't spend some amount of coins during a day, you can't use these coins during the next day. That is fine. So for each day, you are having X coins and you have to buy packs of sugars using those X coins only, and in any case X is exceeding total number of sugar packs you have bought today, you cannot use those left out coins to the next day. Easy peasy. Eventually the cost of each pack will exceed X somehow. Okay, so somehow after, let's just say after 10 days, 20 days, 100 days, 1000 days, all the cost of sugar packs will exceed X. Okay, and on that day you won't be able to buy even a single pack. Okay, so how many packs will you be able to buy till that moment in total? Question is easy peasy and quite intuitive. What you have to do, you have n packs, or you can easily say you have n sugar shops. Okay, and suppose this is day 0, and right now each sugar pack cost a of I in a specific shop. On day 1 their cost will be ai plus 1 for all the shops. Okay, now for each day you will be having X coins, and you have to tell how many maximum number of sugar packs you can buy using them. Okay, now if you see constraints, n is 2 into 10 is 5, so somewhere you can use n log n approach or O of n approach. Okay, fine. You have to use long because X is 10 raised 9, so there may be a possibility that your number will overflow if you will use integer. Now other things, you have to tell maximum number of sugar packs you can buy. Okay, so one thing you can observe from this कि वो कौन सा दिन होगा जब तक तुम शुगर पैक्स खरीद सकते हो, ये देखते हैं. तो सपोज मैं ये वाला टेस्ट केस लूँ, 37212, 3 is n, 7 is x, 2 1 2 are my sugar pack cost for 1 2 and 3 shops. तो अगर मैं टोटल 7 दिनों तक यहाँ से इन तीनों शॉप्स में से किसी एक शॉप में से शुगर पैक खरीद सकता हूँ. वाई? क्योंकि ऑन 7th डे ये जो 1 है इसका कॉस्ट हो जाएगा 8th डे पे 8. ठीक है, और ऑब्वियसली उसके बाद कोई भी ऐसा शुगर पैक नहीं बचेगा जो मैं x रुपीज़ का यूज़ करके ख़रीद पाऊँ. दैट्स वाई तो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज जब तक मैं शुगर पैक्स खरीद सकता हूँ वो कितने हो जाएंगे, मिनिमम वैल्यू इन द एरे. ठीक है, और जो मेरा x का वैल्यू है तो x अपॉन मिनिमम वैल्यू इन द एरे. ठीक है, फाइन. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट अप्रोच. एक चीज़ तो मुझे पता चल गई कि कितने दिन तक मैं शुगर खरीद सकता हूँ, वो x अपॉन मिनिमम वैल्यू ऑफ एरे. ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी. तुम यहाँ पे टेस्ट केस पढ़ भी सकते हो. ठीक है, फाइन. अब क्या मैं इस अप्रोच को यूज़ कर सकता हूँ कि मैं डे 1 में कितनी शुगर खरीदी, डे 2 में कितनी खरीदी? तो इसके ऊपर बात करते हैं. ऑब्वियसली नॉट. वाई? बिकॉज x की वैल्यू कितनी है, 10 raised 9, एंड समवेयर मेरी जो
ए आई की वैल्यू है दैट कैन बी इन मिनिमम 1, ठीक है। तो अगर मैं हर डे की शुगर पैक निकालने आऊँगा तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी। अगर मैं अपना नोट पैड खोल लूँ तो अगर मैं हर डे की शुगर निकालने आऊँ तो x अपॉन मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी 1, तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं हर डे में ट्रेड करूँगा दैट विल बी 10⁻⁹। आई कांट अफोर्ड दैट, आई हैव टू गो फॉर सम अदर अप्रोच। तो नाउ अब ये देखो, कुछ ऐसा चीज़ ढूंढते हैं। सपोज इन सम केस, सपोज हुआ क्या, अब मैं डे की बात करता हूँ कि मैं शुगर पैक्स खरीदूंगा कैसे। मेरे पास एक एरे थी 212, तो ऑब्वियसली इफ़ आई एम हैविंग एक्स कॉइन्स, मैं सबसे पहले मुझे 2 रुपये में भी एक पैकेट मिल रहा है, मुझे 1 रुपये में भी एक पैकेट मिल रहा है, सो ऑब्वियसली आई विल बाय मिनिमम कॉस्ट वन। ओके, तो मैं पहले मिनिमम वाला खरीदूंगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो इन दिस केस यू कैन सॉर्ट द एरे। मैं इसको 1 2 2 कर लेता हूँ, ठीक है। आई विल बी बाइंग दिस वन फर्स्ट, देन दिस वन, देन दिस वन, इफ़ मेरे पास कॉइन्स लेफ्ट हैं, ठीक है, बचे हुए हैं, फाइन। तो इसलिए मैंने इस एरे को सॉर्ट कर दिया। अब मैं नंबर ऑफ डेज पे ट्रेड नहीं कर सकता, तो मुझे कोई और अप्रोच देखनी है, ठीक है। तो कोई और अप्रोच के बारे में अगर मैं सोचूं, तो अगर मैं कुछ ऐसा पता लगा लूं, दूसरी अप्रोच मेरी क्या हो सकती है, मुझे ब्रूटली थिंक करना है। मुझे ये पता है कि मुझे सॉर्ट करना था, मैंने सॉर्ट कर दिया। उसके बाद मुझे ब्रूटली थिंक करना है कि मैं ये सारे के सारे पैक्स, इसका कॉस्ट कितना है 5, ओके। अभी ये डे 0 है, ओके। डे 1 में इनका कॉस्ट कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 इसमें इंक्रीज होगा, 1 इसमें 1 इसमें, तो डे 1 में हो जाएगा 8। डे 2 में कितना हो जाएगा 11। डे 3 में, डे 2 में, ये डे 3 में 14। तो मैं सारे के सारे पैक्स, सपोज सारी की सारी शॉप से अगर एक एक शुगर उठाने वाला हूँ, तो पहले दिन में तो मैं 3 उठा लूँगा, ओके। पर क्या दूसरे दिन में 3 उठा पाऊँगा? ऑब्वियसली नॉट, ओके। मैं दूसरे दिन में सारे शुगर्स नहीं उठा पाऊँगा सारी शॉप से, तीसरे दिन में तो फिर उसके आगे उठा ही नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो क्या मैं ये पता लगा सकता हूँ कि मैं टोटल हर शॉप से कितने दिन तक शुगर पैक्स खरीद सकता हूँ? ऑब्वियसली येस। हाउ? क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि जो मेरा शुगर का कॉस्ट है सारे शॉप से वो है 5, ओके। हर डे में ये कितना इंक्रीज होने वाला है बाई 3, ओके। तो मैं क्या इससे नंबर ऑफ डेज निकाल सकता हूँ कि मैं कितने दिन तक शुगर खरीद सकता हूँ सारी की सारी शॉप से? ऑब्वियसली निकाल सकता हूँ। कैसे? सपोज मेरे पास हर डे के लिए एक्स था, ठीक है। तो ये कितने दिन बाद एक्सीड हो जाएगा? ऑब्वियसली 1 दिन बाद ही, ठीक है, फाइन। तो मैं इससे यहाँ से ये निकालूंगा कि मैं सारी शॉप से मिला के कितने दिन तक शुगर निकाल सकता हूँ, ठीक है, फाइन। अब सपोज यहाँ पे मुझे पता चला कि डे 0 के बाद मैं सारी की सारी शॉप से नहीं खरीद सकता, फाइन। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे ज़्यादा जहाँ से शुगर मिल रही थी उसको हटा दूंगा, ठीक है। ऑब्वियसली आफ्टर डे 0, ठीक है, क्योंकि डे 0 तक तो मैं सारी शॉप से खरीद सकता था। जैसे ही डे 0 से डे 1 आया, सारी से नहीं खरीद सकता, तो मैं क्या करूँगा, जो सबसे ज़्यादा मिल रही थी जहाँ से उसको हटा दूंगा, इस शॉप से नहीं खरीदूंगा। अब मेरे पास बची इतनी एरे। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मैं कितने दिनों तक यहाँ से शुगर खरीद सकता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी है? सपोज अभी राइट नाउ डे 1 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई होगी 3 + 2 दैट इज़ 5। ये चीज़ मैं इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे? मुझे इन सारी शुगर्स का कॉस्ट चाहिए, ठीक है। पहले मुझे क्या चाहिए था, जब मैं यहाँ पे था पूरी की पूरी शुगर्स का कॉस्ट, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया, तो मुझे इन सब का कॉस्ट चाहिए। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, जब इस वाली शॉप को एलिमिनेट करूँगा तो मुझे आगे की सारी शॉप्स का चाहिए। तो यहाँ से एक इंट्यूशन बनता है कि ये प्रीफिक्स सम है, ठीक है। अगर मैं प्रीफिक्स सम बना लूँ इस एरे का, तो मेरे पास पूरे प्रीफिक्सेस का हर इंडेक्स पे सम हो जाएगा, और उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे ith डे पे डे नॉट का कॉस्ट कितना था सारी शॉप से शुगर खरीदने का, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे मैंने इस वाली को एलिमिनेट कर दिया था,
अब मैं खाली इतनी शॉप से शुगर खरीद रहा था और मेरा डे कौन सा था, डे था 1। डे 1 पे इतनी शॉप्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली दैट विल बी इसका सम, दैट इज लेट्स जस्ट से 3 प्लस डे कौन सा है 1। तो 1 डे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 2 और यू कैन से i प्लस 1 मल्टीप्लाई कौन सा डे है, 1 डे है तो एक ही बार इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर ये डे 5 होता तो यहाँ पे मैं 5 लिखता। ठीक है, अब जो मेरा कॉस्ट है यहाँ से शुगर खरीदने का वो इतना हो गया। ठीक है, अब मैं सिंपली ये चेक करूँगा कि मैं x का यूज़ करके कितने दिन तक इतनी कॉस्ट की शुगर खरीद सकता हूँ। ठीक है, जितने दिन तक खरीद सकता हूँ मैं उतने दिन अपने आंसर में कितना ऐड कर दूंगा। सपोज़ इतनी कॉस्ट की शुगर मैं 3 डेज़ तक खरीद सकता हूँ, तो मैं आंसर में कितना ऐड कर दूंगा, 3 मल्टीप्लाई डेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ शॉप्स जो मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दैट इज़ 2। आंसर में इतना ऐड कर दो। ठीक है, अदरवाइज जैसे ही मेरा x का वैल्यू जो है वो कम हो गया कॉस्ट से, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको फिर से एलिमिनेट कर दूंगा और अब अपनी बचे हुए शॉप से देखूँगा। ठीक है, इन दिस वे मैंने एक तुम्हें जनरल अप्रोच बता दी क्वेश्चन की। अब मैं तुम्हें कोड दिखाता हूँ, तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इजी पीजी क्वेश्चन है, कोड दिखाता हूँ मैं तुम्हें। लेट मी जस्ट जूम इट। ठीक है, फाइन। यहाँ पे मैंने एरे का और nx का इनपुट ले लिया, फिर एरे को सॉर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया आंसर 0। ठीक है, और ये लिया एक करेंट डे। ठीक है, कौन सा डे चल रहा है अभी वो मैं इसमें करूँगा स्टोर। तो अभी डे नॉट था, 0 था, तो इसलिए फिर मैंने प्रीफिक्स एरे बना ली, जो कि मैंने एरे ए में ही बना लिया है क्योंकि अब मुझे एरे ए का ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने पीछे से इटरेट करना शुरू किया। ठीक है, पीछे से इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट डे में मैं सबसे पहले ये चेक करूँगा कि मैं सारी शॉप से शुगर खरीद सकता हूँ या नहीं। ठीक है, अब मैंने जो करेंट कॉस्ट है, जो पर डे का कॉस्ट है, जो करेंट डे का कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट डे कॉस्ट ऑफ ऑल द शॉप्स। ठीक है, सपोज फिर से बताता हूँ, सपोज मैं अभी इतनी शॉप्स में चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट डे कॉस्ट कितना हो जाएगा, प्रीफिक्स सम ऑफ आई। ठीक है, और करेंट डे कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स टिल नाउ दैट इज आई प्लस 1, क्योंकि मैं आई को 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई जो भी मेरा डे है। ठीक है, डे 0 था तो डे 0 का कॉस्ट मिलेगा, डे 5 है तो 5, सिंपल। तो ये मुझे मिल गया करेंट डे का कॉस्ट। ठीक है, अब इफ़ जो मेरे करेंट डे का कॉस्ट है दैट इज x माइनस ए आई। ठीक है, ए आई में अब मेरा क्या है, ए आई में मेरा करेंट डे का कॉस्ट है अब। ठीक है, और जो x की वैल्यू है वो मेरे करेंट डे पे मेरे पास जितने पैसे हैं वो है। अगर करंट डे पे ख़रीदने के लिए मेरे पास इनफ पैसे हैं तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो मैं वहाँ से चेक करूँगा कि मैं इतने आइटम्स कितने दिनों तक खरीद सकता हूँ। ठीक है, सपोज़ तो अब मैं ये निकालता हूँ, अब मैं डेज़ में ये निकाल रहा हूँ कि मैं ये सेम आइटम्स कितने दिनों तक खरीद सकता हूँ। तो मैं टोटल नंबर ऑफ देखो x माइनस ए आई कितना हो गया मेरा, x माइनस ए आई हो गया जो मेरे पास बचे हुए पैसे हैं। ठीक है, अब देखो आई बाई आई प्लस 1 से मैंने डिवाइड क्यों किया, सपोज़ मेरे पास जो पैसे थे वो थे 7 और करंट डे का कॉस्ट था 5। ठीक है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ मेरे पास जो पैसे थे वो थे 7, x की वैल्यू, करंट डे का कॉस्ट था मेरा 5। ठीक है, और मैं एलिमेंट कितने प्रोसेस कर रहा था, 2। ठीक है, मुझे 2 ही एलिमेंट्स खरीदने हैं, तो मेरे पास बचे हुए पैसे कितने हो जाएंगे, 7 माइनस 5। ठीक है, इतने पैसे मेरे पास ज़्यादा थे, इनका आज मैंने यूज़ नहीं किया, तो मुझे ये पता लगाना है मैं कितने दिन तक इनको यूज़ कर सकता हूँ बचे हुए पैसों को, बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रोसेस कर रहा हूँ, पर डे कितने कितने से बढ़ता जाएगा, 2 से बढ़ेगा। ठीक है, तो बाई मैंने 2 कर दिया, तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि पर डे जो मेरे बचे हुए पैसे हैं वो 2 से ख़त्म होते जाएंगे, तो एक्स्ट्रा डेज कितने मैं सेम आइटम्स खरीद सकूँगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन। +1 फॉर करेंट डे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे बता रही है एक्स्ट्रा डेज
मैं कितने दिनों तक सेम नंबर ऑफ आइटम्स खरीद सकता हूँ सेम नंबर ऑफ शॉप से, +1 फॉर द करेंट डे। ठीक है, फाइन। तो ये आ गया कि मैं टोटल कितने दिनों तक ये 2 आइटम्स या 3 आइटम्स खरीद सकता हूँ। फिर मैं आंसर में क्या कर दूंगा, सिंपली उतने आइटम से मल्टीप्लाई। और अब मेरा जो डे है, करेंट डे कितने से बढ़ जाएगा, करेंट डे बढ़ जाएगा मेरा ऑब्वियसली डे से। सपोज मैंने 4 दिनों तक 2 आइटम खरीदे, तो ऑब्वियसली अब जो मेरा करेंट डे वो कितना हो जाएगा, प्रीवियस डे +4। ठीक है, इन द एंड you can simply print the answer. So thank you guys for watching this video. If you still have any doubt you can ask me in comment section always. Okay, in the end, अगर तुमने अभी तक न्यूटन स्कूल का पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम चेक नहीं किया है, सो यू मस्ट गो, यू कैन चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब मैं पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम के बारे में बताऊँ अगर, तो तुम्हें नाम से इंट्यूशन मिल रहा होगा दैट यू डोंट नीड टू पे इवन अ सिंगल पेनी अंटिल एंड अनलेस यू गेट प्लेस्ड इन एनी ऑफ द कंपनी। और जो पैकेज वो तुम्हें रेफर करते हैं वो है 5 to 40 LPA। ठीक है, अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है यू कैन गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो तुम उसमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। और अगर तुमने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑब्वियसली यू हैव टू डू दैट फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड एडिटोरियल वीडियोज़ एंड डेली लाइफ क्वेश्चन। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।